नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कोविड की वजह से हमें कई चीजों से समझौता करना पड़ा है। इस बार के संसद के मानसून सत्र में भी कुछ बदलाव हुए हैं। भारत ने कोरोना की टेस्टिंग में रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंक मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद भी कर्ज लेने वालों का पूरा ख्याल रखें। कैसी होगी मेट्रो यात्रा जब 7 सितंबर से फिर से इसकी शुरुआत होगी, और होंगी कई और भी खबरें। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत और चीन सीमा पर तनाव के लिए भारत ने चीन की उकसाने वाली कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने कहा है कि स्थिति सामान्य करने के लिए चीन को पुरानी यथास्थिति बहाल करनी होगी। चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हरकतों से तनाव पैदा कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। चीन के साथ जारी विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने आज अहम जानकारी दी। भारत ने बुधवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए और रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए चीन को सेना पूरी तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार ले जानी होगी। भारत और चीन सीमा पर जारी तनावपूर्ण हालात को सुलझाने के लिए दोनों देश सैन्य और राजनयिक स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। दोनों देश स्थिति को जिम्मेदाराना तरीके से सुलझाने के पक्ष में हैं। भारत चीन सीमा मसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा पर मौजूदा हालात के लिए चीन की उकसाने वाली कार्रवाई जिम्मेदार है और चीन लगातार तय सीमा का उल्लंघन करके सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है। I can say that the ground commanders are still holding discussions to resolve the situation. We reiterate the consensus reached between the two foreign ministers and special representatives that the situation in the border should be handled in a responsible manner and either side should not take any provocative action or escalate matters. It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. Now, the way ahead is negotiations, both through the diplomatic and military channels. The Indian side is firmly committed to resolving all outstanding issues through peaceful dialogue. We therefore strongly urge the Chinese side to sincerely engage the Indian side with the objective of expeditiously restoring the peace and tranquility in the border areas through complete disengagement and de-escalation in accordance with the bilateral agreements and protocols. वहीं भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच बुधवार को सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया था। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की संप्रभुता रक्षा और देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ चीनी ऐप्स की गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। Now, digital technology companies, while operating here, they have the responsibility to abide by the rules and regulations issued by relevant ministries and departments of the Government of India, and particularly those rules and regulations which pertain to data security and privacy of data. So you would have seen the announcement by METI yesterday, where they have said that the activities that these apps have engaged in are prejudicial to the sovereignty and integrity of India, defense of India, to the security of state and public order. So what I can say is that we remain open. We continue to welcome foreign direct investment in the country, including in the area of internet technology. And however, what we would like to say is companies, when they operate here, they have to operate in accordance with the regulatory framework of the Government of India. भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति पर भारत अपने मित्र देशों को भी लगातार विश्वास में ले रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 और जलमार्गों की शुरुआत होने जा रही है। ये जलमार्ग 5 सितंबर से खुल जाएंगे। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 से निपटने में भी बांग्लादेश की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। Of particular significance is the Sonamura-Dokandi route, which it is significant because it connects Tripura to the national waterways of India through Bangladesh for the first time. And a trial run has commenced
from Dawkandi and would conclude at Sonamura on the 5th of September, and it would conclude in the presence of the Honorable Chief Minister of Tripura. Our High Commissioner in Bangladesh will also be joining this event. So this is yet another recent connectivity initiative with Bangladesh. So this initiative will greatly boost our connectivity with the northeastern region and also boost bilateral trade with Bangladesh. Enhanced connectivity through such inland waterways, particularly in this COVID-19 scenario, is significant because it provides for economical, faster, safer and cleaner mode of transportation for traders and business communities from both sides. संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के लिखित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द करने के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों और सरकार के बीच गतिरोध बन गया था, लेकिन दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद के बाद ये रास्ता निकाला गया है। अब अतारांकित प्रश्नों के लिखित जवाब के लिए दोनों सदनों में सांसद नोटिस दे सकते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान लिखित जवाब के लिए सांसद अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं दे सकते हैं। राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों को इस बारे में सूचित किया है। इससे पहले यह तय हुआ था कि उच्च सदन में मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन अब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिनों का आवंटन कर दिया गया है, जिसमें संबंधित मंत्री सवालों का लिखित जवाब देंगे। इसके लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को 5 समूहों में बांटा गया है। इसी हिसाब से सभी बैठकों के दिन जवाब का क्रम भी तैयार किया गया है। पहले समूह के तहत कोयला, रक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारी उद्योग, जल शक्ति, एमएसएमई, खान, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को शामिल किया गया है। इन मंत्रालयों से संबंधित अतारांकित प्रश्नों के जवाब 14, 19, 24 और 29 सितंबर को दिए जाएंगे। दूसरे समूह के तहत वित्त, आयुष, कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यटन मंत्रालय को शामिल किया गया है और इन मंत्रालयों से जुड़े सवालों के लिखित जवाब 15, 20, 25 और 30 सितंबर को दिए जाएंगे। समूह 3 में नागर विमानन, गृह, आवासन और शहरी कार्य, श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और इस्पात मंत्रालय को शामिल किया गया है और इन मंत्रालयों से संबंधित अतारांकित सवालों के जवाब 16, 21, 26 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिए जाएंगे। चौथे समूह के तहत प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा, संचार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी, विदेश, शिक्षा, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, योजना, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, वस्त्र, जनजातीय कार्य, महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े जवाब 17, 22 और 27 सितंबर को दिए जाएंगे। समूह 5 में कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, रेल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को शामिल किया गया है और इन मंत्रालयों से जुड़े अतारांकित प्रश्नों के जवाब 18, 23 और 28 सितंबर को दिए जाएंगे। उच्च सदन में किसी एक दिन के लिए लिखित उत्तरों के लिए शामिल सवालों की कुल संख्या 160 तक सीमित रहती है और प्रश्नों के लिए एक पखवाड़े पहले सूचना देने का प्रावधान है, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू के आदेश से इसमें बदलाव संभव है। इसी क्रम में फिलहाल राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों से अतारांकित प्रश्नों की सूचना ऑनलाइन भेजने का अनुरोध किया है। हालांकि नोटिस ऑफिस में लिखित नोटिस की परिपाटी भी जारी रहेगी। ऑनलाइन नोटिस की सूचनाएं महासचिव को संबोधित होंगी, जिसमें संबंधित मंत्री और उत्तर की तारीख का उल्लेख होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति ने डीएनए प्रौद्योगिकी से जुड़े विधेयक पर खंडवार विचार किया। समिति अभी इस पर और विचार करेगी और 10 सितंबर की अगली बैठक में इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। डीएनए प्रौद्योगिकी पर यह बेहद अहम कानून पहली बार सरकार की प्राथमिकता में है। इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, लिहाजा समिति हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है।
एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 पर संसदीय स्थायी समिति ने खंडवार विचार किया। इस विधेयक पर समिति की ये छठी बैठक थी। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक में 11 सदस्य मौजूद थे। गुरुवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चली बैठक में हर बिंदु पर समिति के सदस्यों ने मंथन किया। बैठक में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव और विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि भी समिति के सहयोग के लिए मौजूद रहे। यह विधेयक 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रस्तुत किया था। विधेयक गुमशुदा व्यक्तियों, पीड़ितों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों और अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग संबंधी विनियमन से संबंधित है। इसमें एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने और कई दूसरी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है, लेकिन विधेयक को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई थी। लिहाजा राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से 15 अक्टूबर 2019 को इसे स्थायी समिति को पड़ताल के लिए सौंप दिया। संसद की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति ने 6 बैठकों में संबंधित विशेषज्ञों से इस पर गहन चर्चा की है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। संसद की सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 की पड़ताल संबंधी काम को लगभग पूरा कर लिया है। सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक में 10 सांसदों ने शिरकत की। ये बैठक 11 बजे से 2 बजे तक चली। समिति ने एजवेल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और सांसदों की मांग पर विस्तृत पड़ताल के लिए विधेयक को 23 दिसंबर 2019 को समिति को सौंपा गया था। समिति ने इस पर अपनी 7 बैठकों में गहन पड़ताल कर साक्ष्य लेने का काम पूरा कर लिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है। विश्व भारती कोर्ट का सदस्य मनोनीत किए जाने पर राज्यसभा सांसद अमर पटनायक ने खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने इसके लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू का आभार भी जताया है। विश्व भारती कोर्ट का सदस्य के तौर पर राज्यसभा सांसद अमर पटनायक की नियुक्ति 28 अगस्त से प्रभावी हुई है और ये 3 मई 2021 तक प्रभावी रहेगी। पिछले 2 दिनों से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक टेस्ट के बाद भारत ने आज कोरोना की टेस्टिंग में रिकॉर्ड छलांग लगाई है। बीते एक दिन में देश भर में 11,72,000 से अधिक टेस्ट किए गए। भारत दुनिया की चुनिंदा देशों में शामिल है जहां इतनी संख्या में रोजाना कोरोना की जांच हो रही है। परीक्षण बढ़ने से पॉजिटिविटी रेट और कोरोना से होने वाली मौतों की दर में कमी दर्ज की गई है। दुनिया के मुकाबले भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना के केस और इससे होने वाली मौत की संख्या सबसे कम है। 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आने के समय देश में प्रतिदिन केवल 10 परीक्षण हो रहे थे। आज ये आंकड़ा 11 लाख से अधिक हो गया है। बुधवार को 11,72,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। देश में अब तक 4.5 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक हमने देश में 4 करोड़ 50 लाख से अधिक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। विश्व में अब केवल एक ही देश है जिसने कि हमसे ज़्यादा क्यूमुलेटिव टेस्ट्स किए हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए। 11,72,000 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं की है, जिनका पिछले 7 महीनों में लगातार विस्तार किया गया है। देश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता में लगातार विस्तार को देखें तो 18 मई को 1 लाख प्रतिदिन टेस्ट की क्षमता को हासिल किया गया था, जो बढ़ते बढ़ते 26 जुलाई को 5 लाख टेस्ट रोजाना तक पहुंच गई। 21 अगस्त को देश ने 10 लाख टेस्ट करने की क्षमता को हासिल कर लिया था। 2 सितंबर को ये संख्या 11 लाख से अधिक हो गई। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ने से संक्रमितों की जल्द पहचान और समय से इलाज सुविधा मुहैया कराने में मदद मिली है, जिससे मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। वहीं परीक्षण की क्षमता के विस्तार से कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। आंकड़ों को देखें तो 23 जुलाई से 5 अगस्त के बीच औसतन प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे थे, जिसमें 10.26% मामले संक्रमित निकल रहे थे। 6 अगस्त से 19 अगस्त के बीच
टेस्टिंग बढ़कर रोजाना 7.5 लाख से अधिक हो गई और पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.3% पर आ गया। अगस्त के आखिर में 9 लाख से ज्यादा टेस्ट रोज हो रहे थे और पॉजिटिविटी रेट 8% से नीचे आ गया। राज्यों की बात करें तो पुडुचेरी में पॉजिटिविटी रेट सबसे अधिक 32.77% है। इसके अलावा चंडीगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में भी जांच किए गए नमूनों में 20% से ज्यादा संक्रमित आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 17% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 24 घंटों में देश में रिकॉर्ड 68,000 से अधिक मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। अब तक इस संक्रमण से 29,70,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर अब 77% से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 83,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। अब तक देश में 38,53,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 29,70,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 67,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.75% है। रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं, जो लोग ठीक हो गए और भले चंगे हो गए, उनकी संख्या अब 29 लाख से भी अधिक हो गई है। 29,70,000 के लगभग पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं और देश में सिंगल डे की हाईएस्ट रिकवरी कल रिकॉर्ड की गई, जबकि 68,584 व्यक्ति रिकवर हुए। देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 3.6 गुना अधिक हो गई है। देश में 8 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। इसमें 62% सक्रिय मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन पिछले 3 हफ्ते में इन 5 राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में साप्ताहिक मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल सक्रिय मामलों में से 62% मामले 5 राज्यों में हैं। ये राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लेकिन पिछले 3 हफ्ते में इन राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी आई है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या में 13.7% की साप्ताहिक कमी आई है। कर्नाटक में 16.1%, महाराष्ट्र में 6.8%, तमिलनाडु में 23.9% और उत्तर प्रदेश में 17.1% की साप्ताहिक कमी सक्रिय मामलों में दर्ज की गई है। इसी तरह देश में कोरोना से होने वाली मौतों में 70% मामले 5 राज्यों में हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 37% से अधिक और तमिलनाडु में 11% से अधिक मौतें हुई हैं। इसके अलावा कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश में भी कोरोना से ज्यादा लोगों की जान गई है। इन राज्यों में साप्ताहिक मृत्यु दर में आंध्र प्रदेश में 4.5%, महाराष्ट्र में 11.5% और तमिलनाडु में 18.2% की कमी आई है। लेकिन हाल के दिनों में मौत के मामले बढ़ने से 2 राज्यों दिल्ली में 50% और कर्नाटक में 9.6% साप्ताहिक मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि दूसरा सीरो सर्वे पूरे देश में शुरू हो चुका है। ये सर्वे 70 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के परिणाम अगले 2 सप्ताह में सामने आ जाएंगे। Now the second sero survey has started in the whole country. 70 districts, 50 districts have completed and a few states are left, and hopefully we should have the results of the entire sero survey of the country, which should be available in the next 2 weeks' time. Having said that, we also have the results of individual cities. For example, Delhi did 2 sero surveys. The third sero survey is now being completed. Chennai has done another sero survey. Mumbai has done another sero survey, and all of them are hovering around 20 to 30% on the 3 big cities that we can talk about. दिल्ली की लाइफलाइन यानी दिल्ली मेट्रो 5 महीनों से भी ज्यादा वक्त के बाद 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से फिर से दौड़ने लगेगी। सोमवार 7 सितंबर को जब यात्री मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे तो उन्हें कई नए प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन और कोच में मौजूदगी को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।
कोरोना महामारी के चलते बंद मेट्रो रेल 7 सितंबर से दिल्ली वासियों को फिर से सेवा देने के लिए तैयार है। शुरू में मेट्रो की फ्रीक्वेंसी 5 से 7 मिनट के बीच होगी और केवल कैशलेस यात्रा की सुविधा मिलेगी। डिजिटल माध्यमों के जरिए ही कार्ड रिचार्ज करना होगा। हर स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन से गुजरना होगा। ज्यादा तापमान वाले यात्री को मेट्रो में सवार होने नहीं दिया जाएगा। फर्श समेत हर जगह निशान बने होंगे और यात्रियों को एक दूसरे से हमेशा 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क जरूर पहन के आएं। जब आप मेट्रो स्टेशन पे आएंगे पहले चेक कर लीजिए कौन सा मेट्रो स्टेशन एंट्री खुला हुआ है। नॉर्मली स्टेशन पे हमारे पास 4-5 एंट्री हैं, एक एंट्री हम खोलेंगे। इंटरचेंज स्टेशन पे हो सकता है 2 एंट्री भी खुले रहें। हमारा लिस्ट अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे, तो उस पर चेक कर लीजिए कि कौन सा मेट्रो एंट्री खुला होगा। लिफ्ट या एस्केलेटर की हैंडरेस्ट, AFC गेट्स के टच पॉइंट्स हों या कस्टमर हैंडलिंग पॉइंट्स, हर जगह को हर 4 घंटे पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मेट्रो स्टेशंस पर लिफ्ट के पास पैडल स्विच लगा होगा, यानी लिफ्ट बुलाने के लिए बस पैर से स्विच दबाना होगा। लोगों से कम सामान लेकर चलने की अपील की गई है। मेट्रो स्टेशंस पर बैग को भी सैनिटाइज करने का इंतजाम होगा। जब आप मेट्रो ट्रेन के अंदर आ जाएंगे तो कुछ प्रिकॉशंस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पे ये मार्कर है वहाँ पे आप मत बैठिए और एक सीट छोड़ के बैठिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। तो वी कैन ऑल ट्रैवल वेरी कंफर्टेबली अगर हम ये सब बेसिक जो मेथड्स हैं वो फॉलो करें। जब आप मेट्रो ट्रेन बोर्ड करते हैं उस टाइम काइंडली जो पैसेंजर्स ऑलरेडी ट्रेन में हैं उनको पहले उतरने दीजिए, उसके बाद आप बोर्ड करिए। अननेसेसरी धक्का मुक्की मत करिए, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। दिल्ली में शुरुआत येलो लाइन से होगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी रूट्स शुरू किए जाएंगे। मेट्रो कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। DMRC 9 सितंबर से ब्लू लाइन पर मेट्रो की सेवाएं बहाल करेगी। 10 सितंबर से रेड, ग्रीन, पर्पल लाइन पर सेवा शुरू होगी। 12 सितंबर से सभी लाइनों पर मेट्रो पूरी तरह बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि मेट्रो स्टेशंस और कोच में मौजूदगी को लेकर जो नियम तय किए गए हैं उनका पालन जरूरी होगा। कमोवेश यही SOP पूरे देश में जहां भी मेट्रो का संचालन होगा वहां लागू होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह आदेश MC मेहता मामले में पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जो कि 3 महीने में पूरा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष VK यादव को CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस नियुक्ति के बाद वो रेलवे के इतिहास में इस तरह का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मंत्रिमंडल ने पहले रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज यानी IRMS का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस IRHS किया जाएगा। इन सुधारों को लेकर रेलवे का कहना है कि ये बदलाव रेलवे के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देगा, निर्णय लेने में तेजी लाएगा, संगठन के लिए एक सुसंगत दृष्टि पैदा करेगा और तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के दौरान ऋण समाधान ढांचे के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं संकल्प नीतियों का 15 सितंबर 2020 तक खुलासा कर दे। साथ इसके लिए मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर्ज की अदायगी पर लगे मोरेटोरियम को हटने के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहकों यानी कर्ज लेने वालों का खास ख्याल रखना होगा।
बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक सुनिश्चित करें कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई परेशानियों का असर कर्ज लेने वाले की साख पर न पड़े। इस मौके पर बैंकों ने विश्वास दिलाया कि उनकी संकल्प नीतियां तैयार हैं और वो योग्य लेनदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वो रिजर्व बैंक की तरफ से तय की गई समय सीमा का पालन करेंगे। बैंकों की संकल्प नीतियों को आरबीआई की मदद मिल सके, इसके लिए वित्त मंत्रालय लगातार केंद्रीय बैंक के संपर्क में है। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे उपायों के सफल परिचालन में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से छोटे कारोबारियों, बिजनेस और कंपनियों को कर्ज देने के लिए आगे आने का आह्वान किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सरकार का हमेशा से ही इस पर फोकस भी रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों यानी एमएसएमई के लंबे समय से चली आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऐतिहासिक उपाय किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में ये घोषणा की है कि सरकारी संस्थाओं को 45 दिन के अंदर इस तरह के भुगतान कर देने चाहिए। इस कदम का कड़ाई से पालन भी किया गया। इस कदम का सेक्टर को लाभ भी मिला है। इसके अलावा उठाए गए कदमों की बात करें तो इनमें मासिक भुगतान और मासिक बकाया राशि के लिए एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रारूप बनाया गया है। इसके जरिए पिछले 3 महीनों में ही मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा 6800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय में सरकार ने TREDS मंच पर ऑन बोर्डिंग के चार्ज माफ कर दिए हैं। सरकार ने मार्च 2021 तक एमएसएमई के लिए ऑन बोर्डिंग चार्ज माफ कर दिए हैं। एमएसएमई के व्यवसाय को आसान बनाने के लिए उद्यम के नए पंजीकरण के लिए मंत्रालय के पोर्टल को TREDS और GEM के साथ सहज तरीके से एकीकृत किया जा रहा है। जुलाई में नई प्रणाली शुरू होने के बाद 1 सितंबर तक करीब 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। सरकार के इन उपायों से एमएसएमई सेक्टर को समय पर भुगतान मिल पाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के अहम सेक्टर को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। भारत 2019 में 52वें स्थान पर जबकि साल 2015 में 81वें स्थान पर था। कोविड-19 महामारी के बीच में वैश्विक नवाचार सूचकांक में सुधार भारत के लिए अच्छी खबर के रूप में सामने आया है। 4 पायदान की छलांग के साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में निरंतर सुधार में देश के स्टार्टअप, पारिस्थितिक तंत्र, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का भी विशेष योगदान रहा है। खासकर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक मंत्रालयों ने देश को इस मामले में लगातार समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। India ranks 48th amongst 131 economies. Its rank has improved from 57 in 2018 to 48 now. This is significant. And it makes it in the top 50 for the first time. Now, this is a hard goal to have achieved. And now we must both keep in the first 50 and steadily ramp up. And we must keep in mind that the metrics which we see of successes are not what we are chasing. We're chasing content, and as a consequence of that, the metrics change. So with other economies, with 3 other economies, India holds the record for being an innovation achiever for 10 consecutive years. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 4 स्थान ऊपर उठकर अब 48वें नंबर पर आ गया है। यह विश्व स्तर पर हमारे टेक्नोलॉजी उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का प्रमाण है। इस उपलब्धि के लिए हमारे टेक्नोलॉजी उद्यमियों समेत सभी हितधारकों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी मंच यानी USISPF के 3रे लीडरशिप समिट को रात 9 बजे संबोधित करेंगे। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। 5 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन की इस बार की थीम है US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस।
इस आयोजन का सीधा प्रसारण आप राज्यसभा टीवी पर भी देख सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।